Hello students, good morning to all of you. So here I'm going to solve the problems of H.C. Verma Unit 2 Physics and Mathematics. So let's start with question number 2.8 there. So height reached in time t by a particle thrown upward with the speed u is given by this relation, as this is one of the equation of motion. S is equal to ut plus half at square, but it is written as h is equal to ut minus half gt square. Because the acceleration involved here is acceleration due to gravity, so let's suppose we take the upward journey to be positive and downward direction to be taken as negative, and g is always in the downward direction, so this negative sign is there. It is h is equal to ut minus half gt square. Find the time taken to reach the maximum height. तो बेसिकली मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना लगेगा ये हमें पूछा जा रहा है. स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट इन दिस केस जो हाइट है, जो बॉडी हाइट गेन करेगा, दैट विल वेरी विथ टाइम. ओके, सो हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. बेसिकली इन दिस क्वेश्चन हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. So at the maxima or the minima, the differentiation or the variation of height with respect to time is basically equal to 0. So हमसे पूछा जा रहा है find the time taken by the to reach the maximum height. So we know that कि at the maxima of anything जो variation है उसका with respect to that quantity is 0, और similarly at the minima dh by dt is equal to 0. So we'll differentiate that and get the time required to reach the maximum height. तो हम इसे differentiate करेंगे with respect to time height को, because it is changing with respect to time, so it is written as dh by dt is equal to ut का जो differentiation आएगा like u जो है simply आ जाएगा t का dt by dt is 1 minus half and g is also a constant, so the differentiation of this t square is 2t dt by dt, so it is simply written as 2t. We are differentiating this equation there, so dh by dt की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ जाएगा u minus gt, so that is the value. And students at the maxima or the minima dh by dt is equal to 0, और ये हमें टाइम की वैल्यू दे देगा यहाँ से. So at maxima और minima we can say that dh by dt is equal to 0. So हम u minus gt को 0 के सामने इक्वेट कर देंगे, यहाँ से gt का वैल्यू आ जाएगा सिंपली u, माइनस से माइनस कट जाएगा, so t is equal to u by g. So this t is equal to u by g is that time when body is at the maximum height. ये वो टाइम है जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पर रहेगी. बाकी आप लोग ये सोच सकते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के ही केस में जो है dh by dt को 0 पुट किया जाता है. सो टू कन्फर्म दैट कि इज इट मैक्सिमा और मिनिमा, वी अगेन डिफ्रेंशिएट दैट. ओके, अगेन हम डिफरेंशियल जिसको डिफ्रेंशिएट किया उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, and if that becomes negative it means that is maxima, and if it becomes positive it means it is minima. So we'll confirm it here, यहीं पर confirm कर लेंगे, इसको फिर से differentiate करेंगे. So further differentiate करने पर डबल डेरिवेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी u का वैल्यू 0 आ जाएगा, और माइनस gt का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस g. सो वी कैन से दैट कि ये जो है ये मैक्सिमा था, नॉट मिनिमा. तो हमसे पूछा भी गया था कि आपको वो टाइम बताना है जब बॉडी जो है, पार्टिकल जो है मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा. सो दिस इज़ द थिंग. इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है. सिंपली हाइट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और एट द मैक्सिमा और द मिनिमा हाइट इज़ मैक्सिमा और मिनिमा पे जो है आपका जो वेरिएशन है, जो स्लोप है ग्राफ का, बिकॉज इट इज़ हाइट विद टाइम, वो 0 आ जाता है. सो यू विल जस्ट डू द डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0 एंड गेट इट. बट फर्दर आपको ये कंफर्म करना हो कि ये मैक्सिमा की कंडीशन अचीव किया है कि मिनिमा का, आप उसे एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए. जैसे मैंने dh by dt लिखा था u माइनस gt, इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट किया, तो फिर डिफ्रेंशिएट करने पर ये मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, लाइक u का 0 आ जाएगा. u इज इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया होगा, g इज अ कांस्टेंट, सो माइनस gt का डिफ्रेंशिएशन माइनस g आ गया. सो इट इज़ नेगेटिव, इट मीन्स दैट इज़ मैक्सिमम. लाइक अगर आप इस तरह से कभी समझे हों ग्राफ्स को, y-x का ग्राफ मैं अगर बनाता हूँ, सो दिस इज़ द ग्राफ. ओके, सो एट द मैक्सिमा स्टूडेंट्स द स्लोप इज़ 0, सो आई कैन से दैट एट द मैक्सिमा dy by dx is 0, और similarly at the minima I can say that dy by dx is equal to 0. तो यहाँ height और t का ग्राफ था, यहाँ y और x का है. So maxima minima, but again to check that it is maxima we again differentiate that, and if differentiation becomes negative we can say that it is maxima, and if differentiation further double derivative करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, so we can say that it is basically minima. So this is the answer for this problem number 2.9. सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.9 की तरफ. ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का है. सो आपको यहाँ पर बेसिक एक इंटीग्रेशन समझना है कि किस तरह से इंटीग्रेशन की जाती है. इट इज़ अ डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें कि लिमिट्स हैं अपने पास 3 से 6 तक. सो विल इंटीग्रेट दैट
एंड जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स, आई होप आप उसके फॉर्मूलाज जानते हैं किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे हम. सो लाइक दिस इज, वी कैन इसको पूरा ओपन कर लेते हैं. चलिए, सो इट इज़ 2x स्क्वायर dx एंड इट इज़ प्लस it can be written as 3x dx plus integration 5 dx. So here like it is from 3 to 6, limits जो हैं वो 3 से 6 हैं. 3 is the lower limit and 6 is the upper limit. So we'll do the integration there. So it is 2x square dx. So x square dx का जो इंटीग्रेशन है वो अपने पास आएगा x raised to power 3 and similarly divided by the 3 as well. तो पावर उसी से डिवाइड करना है आपको, और साथ में अपने पास 2 भी था. और लिमिट्स हम बाद में पुट करते हैं सारी की सारी. प्लस इट इज़ अगेन लाइक इट इज़ x dx. सो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा दैट इज़ x स्क्वेयर, दैट पावर उसी से डिवाइड करना है आपको. प्लस आगे है 5 dx. सो dx का इंटीग्रेशन है x, सो इट इज़ 5x. सो दिस इज़ आफ्टर द इंटीग्रेशन. और जो लोअर लिमिट है वो 3 है, अपर लिमिट जो है वो अपने पास 6 है. तो फर्स्ट वी पुट द अपर लिमिट देयर. अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज़ 6. सो इट इज़ 2 और 6 का क्यूब जो है वो आ जाएगा 36, 216. आई होप 216 आ जाएगा. 3 प्लस 3 इंटू अपर लिमिट हम स्टूडेंट्स अभी पुट कर रहे हैं 36, और 36 डिवाइड बाय 2 एंड इट इज़ प्लस दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाय 6. तो ये अपर लिमिट पुट किया. हमें अपर लिमिट से जो है पूरा का पूरा लोअर लिमिट को माइनस करना है. तो लोअर लिमिट पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे. सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. सो आ जाएगा 2 इंटू, सॉरी इट इज़ 3 3 3 9, 9 3 ज़ा 27. सो यहाँ आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 अपॉन 2 एंड 5 3 ज़ा 15. सो विल सॉल्व दैट. इसे हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से. सो आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर देयर. जो भी आंसर आएगा यहाँ पर अपने पास, देखिए ये अपने पास 3 7 और 72, और इसको हम लिख सकते हैं 144 राइट किया जा सकता है. प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 18. सो इट इज़ 54 प्लस 30. ओके, माइनस यहाँ कर लेते हैं 3 9 और 9 2 हो गया स्टूडेंट्स 18, और ये 2 27 है, ये 15 है. तो इसे हम कर सकते हैं लाइक इट इज़ बेसिकली 13.5. ओके, 13.5 इसे हम लिख सकते हैं. प्लस 15 इसे लिखा जा सकता है. तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है. सो 1 मिनट. सो ये है 144 प्लस 54 स्टूडेंट्स प्लस 30. सो ये अपने पास आ गया 228. सो विल राइट इट एज 228 माइनस. सो इसे माइनस कर लेते हैं. सो इट इज़ 228 माइनस 18 है, एंड इसके बाद फर्दर माइनस करना है 13.5 को. 13.5 फर्दर माइनस करना है हमें. आई थिंक इट वाज 15 था ये, इट वाज 15. सो ये जो आंसर आ गया 181.5. सो पूरा ही लिख लेते हैं सीधे ही माइनस करके. 181.5 इज़ द आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन. अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. अगला जो प्रॉब्लम है 2.10, ये इसमें हमें राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक. तो अगर हम पहले इस नंबर को देखते हैं 15462, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं. सो बेसिकली मुझे यहाँ पर 6 को जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है. सो इट इज़ 154. ओके, तो मुझे देखिए 6 को ड्रॉप करना पड़ेगा, मुझे 3 रखने हैं. नाउ जो 6 है इट इज़ लाइक ग्रेटर देन 5. सो ऑब्वियसली पीछे वाले में इंक्रीज करूँगा. सो 155. नाउ इट कैन बी लाइक 15462 को मैं कभी भी 155 नहीं लिख सकता हूँ, 155 नहीं लिख सकता हूँ. सो आई हैव टू राइट लाइक दैट 15500 इस तरह से लिखेंगे. देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना था, तो ऑब्वियसली 3 तो रहेंगे पहले के. तो ये 6 जो है यहाँ से ड्रॉप किया जाएगा. अब 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो प्रीवियस वाले में 1 का इंक्रीज कर दिया, 4 का 5 बन गया. बट लाइक आई कैन नॉट ड्रॉप कि मैं 15462 को 155 कह दूँ. सो इस तरह से नहीं लिखा जाएगा. सो आई जस्ट लाइक राइट दैट 00 मुझे लिखना पड़ेगा. सो इट इज़ 15500. दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे चलते हैं बी पार्ट की तरफ. अगेन सभी क्वेश्चंस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है. सो 3 तक रखना है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स 4 को जो है अपने को ड्रॉप करना पड़ेगा. 4 को ड्रॉप करेंगे. सो वी आर सिंपली लेफ्ट विथ 14.7. दैट्स ओके.
सो 14.7 इज द आंसर। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देयर। आगे चलते हैं, 14.750 है यहाँ पर। अगेन 3 तक रखना है तो 5 को जो है यहाँ पर हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। तो 5 को ड्रॉप करना है, बट लाइक अगर प्रीवियस देखते हैं आप तो पीछे वाला नंबर जो है वो ऑड है, सो विल राइट इट एज 14.8। उसे 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। सो आंसर इज 14.8। सो 14.8 इसका आंसर है। आगे चलते हैं, 14.650 10 पावर 12। साइंटिफिक नोटेशन से लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिग्निफिकेंट फिगर पर, आपको 3 छोड़ने हैं। तो बेसिकली अगेन आपको फिर से 5 को जो है यहाँ पर ड्रॉप करना पड़ेगा। सो लाइक 5 को आप ड्रॉप कर रहे हैं लेकिन पीछे वाला नंबर जो है वो इवन है, सो देयर विल बी नो चेंज। यू सिंपली राइट इट एज 14.6 इंटू 10⁻²12। सो ये जो है आंसर है अपना 4th पार्ट। इस तरह से आप राउंडिंग ऑफ करेंगे। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2.11 की तरफ। यहाँ अपने को इवेल्युएट करना है, मल्टीप्लाई करना है एंड सभी को मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो यह है 25.2, यह 1374 और यह 33.3। तो इसमें जो है बेसिकली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें जो है वो 3 है और इसमें 3 है। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाई और डिवीज़न करते वक्त जो रूल है वो इस तरह से है कि आपको आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट रिटेन करने होंगे जितने इनमें सभी में से सबसे कम वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ 3, 3 और 4 हैं। तो बेसिकली जो अपना आंसर आएगा ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद, उस आंसर में हमें बेसिकली राउंडिंग ऑफ कुछ इस तरह से करनी है कि लास्ट में अपने पास आंसर में बेसिकली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रह पाएँ। बिकॉज इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो मिनिमम वाला जो है वो 3 है। तो इस तरह से राउंडिंग ऑफ करना है पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के बाद कि आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहें। सो फर्स्ट वी सिंपली डू द मल्टीप्लिकेशन। तो जो कि है 25, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 25.2 मल्टीप्लाइड विथ 1374। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसे डिवाइड करना है हमें 33.3 के साथ। तो ये सॉल्व करने पाएगा 1039.78, 1039.78। देखिए इस तरह से कुछ आंसर आ जाएगा। अब आपको आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। ये 1000 के लगभग एक वैल्यू है आपके पास। तो ये देखिए आपको 9 को जो है ऑब्वियसली यहाँ पर ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज आपको रखने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब 9 को ड्रॉप करेंगे, 9 5 से ज़्यादा है, तो ये 3 जो है एक अमाउंट से इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 104। बट नाउ लाइक 1003 को आप 100 इस तरह से राउंड ऑफ नहीं कर सकते कि उसका 104 बन जाए। 1003 को 1039 को कभी भी आप 104 नहीं कह सकते हैं। सो इट इज़ 1039। ओके, सो यहाँ पर आपने रूल लगा दिया, 9 को ड्रॉप कर दिया, 3 का एक इंक्रीज़ करके 4 लिख दिया। बट नाउ इस तरह से राउंड ऑफ करना है कि दैट नंबर ऑल्सो सेटिस्फाइड कि यार 1039 को 104 नहीं कहा जा सकता है। सो यू हैव टू पुट 0 देयर। सो ये हुआ आपका राउंडिंग ऑफ। इसमें क्या है कि 1039 को आपने 1040 लिखा है और साथ में यहाँ पर आंसर में जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हैं। सो इस तरह से राउंडिंग ऑफ की जाएगी। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2.11।